10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗ ਕੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ, 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 12ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਨੰਬਰ ਦੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਫ ਦਾ HCF ਆਫ 96 ਐਂਡ 404 ਇਜ਼ 4 ਦੈਨ ਦੇਅਰ LCM ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 96 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ √7 ਇਜ਼ ਉਹ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ √5 ਇਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਪਾਈ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਐਨ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਦਾ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੈਦਰ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ 17.8 ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ HCF ਆਫ 26 ਐਂਡ 91। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ 13 ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦਾ ਰੇਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਆਫ 0.15 ਇਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 0.15 ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ P/Q। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 3/B। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ B। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ √4। ਅੱਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ 3 ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ 2 ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੁਆਡਰਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 2 ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਲੂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਫॉर 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਗਰਸ A ਐਂਡ B देयर ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਯੂਨੀਕ ਇੰਟੀਗਰਸ Q ਐਂਡ R ਸੱਚ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਹੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ 0 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ P/Q ਇਜ਼ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਇਫ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆਫ Q ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 2n ਤੇ 5m। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 12 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ 12 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 24 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 24 ਆਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਆਫ ਕੁਆਡਰਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਜ਼ੀਰੋਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ -3। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ √3 ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -√3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ 1/2 ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1/2 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ C ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਿਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਾਈ ਫॉर ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ AX ਦਾ ਸਕੁਅਰ +BX + C = 0 ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਜ਼ੀਰੋਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ -B/A। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫॉर ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ AX ਦਾ ਸਕੁਅਰ +BX + C = 0 ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਟਸ 0। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ C/A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ 2 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 2 ਆਂਸਰ ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ 2 1। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ A1x + B1y + C1 = 0 ਐਂਡ A2x ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ B2y + C2 = 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ
ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੁਆਡਰਿਕ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ 49 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਕੁਆਡਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ kx plus 3 is equal to 0 has a 2 equal root is। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਿਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਡਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ प्लस 3x प्लस 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न है दोस्तों की है फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 0 एंड 5 रिस्पैक्टिवली। ठीक है जी, तो यह आंसर दोस्तों यह वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगे है दोस्तों इन द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ x प्लस b2y इज प्लस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ c2 इज इक्वल टू 0। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न की है, देखो इतने अपना फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। तो 3 7 11 तो इधर दोस्तों 39 आंसर आ जाएगा। आगे दोस्तों फाइंड द राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन A इज इक्वल टू 10 D इज इक्वल टू 10। तो इधर आंसर आ जाएगा 10 20 30 40। अगला है अपना 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 इज डैश। तो दोस्तों इधर आएगा अपना कितना -77। अगे है दोस्तों द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय फार्मूला। ठीक है जी, तो यदा आंसर तुम देख सकते हो कि आ जाएगा SN इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बटे 2। अगला प्रश्न है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 3 1 तो -1 तो -3 इज। तो दोस्तों इधर जो है -2 आंसर हो जाएगा। अगे दोस्तों साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9 देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो इधर आंसर आएगा 16:81। अगे है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 16:81 देन साइड ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो दोस्तों 4:9 इज द राइट आंसर होएगा। अगे दोस्तों फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के द पेयर ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों k इज नॉट इक्वल -10/3। ठीक है जी, यही आंसर होएगा। अगे है क्वेश्चन अपना द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 14 x माइनस y इज इक्वल टू दोस्तों 4। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू दोस्तों 9 ਤੇ y इज इक्वल टू दोस्तों अपना 5। ठीक है, यहाँ ਤੁਸੀਂ सॉल्व भी करके देख सकते हो। अगे दोस्तों प्रश्न है इफ 6k इज द वन सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 22 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखो की है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो दोस्तों ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आंसर ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ -1.5। ठीक है जी, यानी कि 1.5। अगे दोस्तों द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन डैश इवेंट इज 0। तो दोस्तों इंपॉसिबल इवेंट ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ प्रोबेबिलिटी हमेशा ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकती। अगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन डैश इवेंट इज 1। तो दोस्तों पॉसिबल और सर्टेन। ठीक है जी, अगे अ कॉइन इज अ टॉस वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, अगे दोस्तों अ कॉइन इज टॉस वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज। तो दोस्तों 1/2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगे दोस्तों अ डाइस इज थ्रो वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन इवन नंबर विल बी। तो ਇਹਦਾ सी ऑप्शन यानी कि 1/2 राइट आंसर होएगा। अगे अ डाइस इज थ्रो वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर विल बी। तो 1/2 इज द राइट आंसर होएगा, सी ऑप्शन। अगे दोस्तों व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट जो हो सकता वा तो ਉਹਦਾ दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 1 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। अगे दोस्तों द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इज गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਆਫ 3 ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ 3 ਐਜ਼ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ x ਐਕਸਿਸ ਐਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆंसर ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ वट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंपॉसिबल इवेंट तो 0। ठीक है जी, वट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस इवेंट नॉट ई। तो दोस्तों ਇਹਦਾ किया जाएगा अपना 1। अगे इफ पी, हाँ जी, इफ पी ई 0.05 वट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों 0.95 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपना अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो दोस्तों 2 0। ठीक है जी, अगे है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो दोस्तों 0.3 सी ऑप्शन इज द करेक्ट होएगा। पॉइंट एक्स 030 लाइज ऑन द डैश एक्सिस। तो दोस्तों एक्स एक्सिस इज द आंसर होएगा। ऑन वट वन ऑन विच एक्सिस पॉइंट 0y 05 इज लाइज। तो दोस्तों वाई एक्सिस इज द राइट आंसर होएगा।
ਅੱਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ y ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ, ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਸੀਸਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਬਸੀਸਾ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ 3-4 ਇਜ਼, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 3 ਆਏਗਾ। HCF ਆਫ 64 ਐਂਡ 96 ਵਿਲ ਬੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 32 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦਾ HCF ਆਫ 2 ਕੰਸੀਕਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1 ਹੋਏਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ AX ਪਲੱਸ B। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਸਿਮਿਲਿਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਗਿਵਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ठीक है दोनों, तो यदा दोस्तों किया जाएगा ट्रिपल ए ऑप्शन सही होएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अगे दोस्तों लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ देन देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर द स्क्वायर एंड 112 सेंटीमीटर द स्क्वायर इफ ई एफ इजकल टू दोस्तों 15.4 सेंटीमीटर दैन बी सी इज, तो दोस्तों ये जो है 11.2 सेंटीमीटर के बराबर होएगा, ठीक है जी। तो यदा ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगे दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, तो दोस्तों यदा आ जाएगा अपना बी ऑप्शन करेक्ट होएगा, ठीक है जी। तो यानी कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अगे दोस्तों इन द फिगर डी ई पैरेलल बी सी दैन ई सी विल बी, तो दोस्तों डायग्राम थोड़ी दी हुई है, ठीक है जी। तो यदा आंसर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगे दोस्तों द पॉइंट ए 90 बी 96, ठीक है जी। सी जो है -96 तो अगे डी -90 आर द जोड़ा की लिखा दोस्तों आर द वर्टिकल्स ऑफ, ठीक है जी। तो दोस्तों यदा की आंसर आ जाएगा अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रिक्टेंगल, ठीक है जी। तो यदा आंसर दोस्तों अपना रिक्टेंगल हो जाएगा। आगे है दोस्तों अपना प्रश्न कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट -17 एंड 4-3 विल बी, तो दोस्तों यदा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3/2 और जो है इतने Z या पता नहीं 2 लिखा हुआ है। अगे है दोस्तों इफ ए -3 ए -3 ते -1 ते 3 बी जो है दोस्तों 1 ते -1 एंड सी 5 1 आर द वर्टिकल्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी दैन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम द बी टू साइड ए सी। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना √10 होएगा इसका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन। आगे है दोस्तों इफ कॉस ए इजकल टू दोस्तों 24/25 दैन द वैल्यू ऑफ साइन ए इज, तो दोस्तों यदा ए ऑप्शन करेक्ट होएगा, यानी कि 7.25, ठीक है जी। तो हुण दोस्तों अपना प्रश्न दिता है कि साइन, हाँ जी, साइन 0 इज इक्वल टू, तो दोस्तों ये जो है 0 यानी कि ए ऑप्शन के बराबर होएगा, ठीक है जी। अगे द वैल्यू ऑफ 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 द स्क्वायर 30 डिग्री इज, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अपना साइन 60 डिग्री इज द ए ऑप्शन, सॉरी साइन 60 डिग्री, ठीक है जी। तो इतने सी ऑप्शन दस्या है, तो यह ऑप्शन अपना सही होएगा। अगे दोस्तों द वैल्यू ऑफ 1 - 10 द स्क्वायर 30 डिग्री इज वटे दे विच 1 + 10 द स्क्वायर 30 डिग्री, तो दोस्तों इसका कॉस 60 डिग्री आएगा। If tangents PA and PB from a point P to a circle with the center O are inclined to each other at the angle of 80 degree, then कोण POA इज इक्वल टू, तो दोस्तों इसका आंसर किया जाएगा अपना ए ऑप्शन, यानी कि 50 डिग्री। अगर है दोस्तों अपना द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज, तो इसका आंसर दोस्तों अपना जो है ए ऑप्शन, यानी कि 2 आ जाएगा। अगे दोस्तों हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव, तो दोस्तों इसका इनफिनाइट आंसर आ जाएगा। आगे दोस्तों द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो दोस्तों इसका 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। आगे है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल P डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज, तो दोस्तों इसका आंसर तुम यहाँ देख सकते हो, इन्होंने दस्या है कि डी ऑप्शन होएगा। डी ऑप्शन की है दोस्तों आह वाला, ठीक है जी। तो हुण दोस्तों अपना अगला प्रश्न की है एरिया ऑफ अ सेक्टर एंगल थीटा ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R विल बी, तो इसका आंसर दोस्तों डी ऑप्शन होएगा, यानी कि ये वाला, यानी कि थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर द स्क्वायर। अगे दोस्तों इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होएगा, यानी कि 14:11, ठीक है जी। अगला प्रश्न है एरिया ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर R विल बी, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट होएगा पाई आर द स्क्वायर बटे 4, ठीक है जी। अगे दोस्तों इफ वी ज्वाइन 2 हेमिस्फीयर ऑफ अ सम रेडियस सेम रेडियस अलॉन्ग देयर बेसिस देन वी गेट अ रेशियो, ठीक है जी। तो हाँ जी वी गेट ए इज, ये पता नहीं की दिता है, तुम इसमें देख लेना वा। तो इसका आंसर दोस्तों स्फीयर आ जाएगा, ठीक है जी। अगे दोस्तों अपना प्रश्न इफ R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है जी, देन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय, तो दोस्तों 4 पाई आर द स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई आर द स्क्वायर। अगे दोस्तों अपना द शेप ऑफ एन आइसक्रीम कोन इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ, तो दोस्तों इसका की आंसर आ जाएगा अपना हेमिस्फीयर प्लस कोन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों की इतने अपना
ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ 10 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਵਾਰੀ 10 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ मीडियन। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों ये किमें इन्हें दिता है ऑप्शन, आंसर सी इस दा आंसर आ जाएगा यानी कि 32। ठीक है जी, तो इतने दोस्तों देख लो इसका आंसर जो है 32 इन्होंने लाया हुआ है। अगे दोस्तों मीन ऑफ 100 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 50 बट लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द नंबर 150 वाज रॉन्गली टेकन एज अ 50, द करेक्ट मीन इज, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 49 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगे दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा -15। ठीक है जी, अगे दोस्तों 9 sec का स्क्वायर ए -9 10 ए इज इक्वल टू, तो दोस्तों ये 9 के बराबर होंदा है। ठीक है जी, अगे दोस्तों इफ साइन 2a इज इक्वल टू दोस्तों cos a -18 डिग्री इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, तो दोस्तों इसका 36 डिग्री आंसर आ जाएगा। इफ दोस्तों पी ए रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो दोस्तों ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ सी ऑप्शन यानी कि ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बस सही हो जाएगा। ठीक है जी ऑप्शन। तो हुण दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा वा तुहाडा यानी कि ट्रू फाल्स जिहड़े तुहानूं 8 मार्क्स के आने आ। ठीक है जी, 1-1 मार्क्स के होणगे, 8 मार्क्स के तुहानूं ये आने आ। तो दोस्तों देखो की है सब तो पहला प्रश्न, ये √25 इज़ अ रेशनल नंबर, तो यह ट्रू है। ठीक है जी, √5 इज़ रेशनल नंबर, तो ये भी यह फॉल्स है दोस्तों। 3 इज़ अ रेशनल नंबर, तो यह ट्रू है। ठीक है जी, अगे है दोस्तों अपना √9 इज़ अ इरेशनल नंबर, तो यह फॉल्स है। √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ट्रू। ठीक है जी, अगे दोस्तों अपना 2 हो गया दोस्तों 5 -√2 इज़ अ इरेशनल नंबर, तो यह फॉल्स है। ठीक है जी, अगे दोस्तों द नंबर ऑफ 0.15 कैन बी रिटन एज रेशनल नंबर 3/b, तो यह ट्रू है। और 140 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 द स्क्वायर 5 7। ठीक है जी, तो यह ट्रू है। अगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रैसड एज अ प्रोडक्ट प्राइम्स, तो दोस्तों इसका आंसर जो है ट्रू आ जाएगा। अगे दोस्तों आ जो दिता हुआ वा यह की है रेशनल नंबर है, तो दोस्तों ये ट्रू है। √5 इज हाँ जी √5 इज़ अ रेशनल नंबर, तो यह फॉल्स है। ठीक है जी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 17.8 इज़ टर्मिनेटिंग, तो यह दोस्तों ट्रू है। अगे पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड कुबिक, तो यह कुबिक पॉलीनोमियल, तो यह फॉल्स है। पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलीनंबर, तो दोस्तों ये ट्रू है अपना। अगे पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलीनोमियल। ठीक है जी, पॉलीनोमियल, तो यह ट्रू है अपना। पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो यह ट्रू है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 3x द क्यूब -2 इज़ ये ट्रू है। ठीक है जी, अपना डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 10x - 1, ठीक है जी 10x इज़ 1, तो आगे है दोस्तों ट्रू है। अ क्वाड्रिक पॉलीनोमियल 6x द स्क्वायर -x 2 हैज़ 2 zeros। ठीक है जी, तो ये ट्रू है अपना बिल्कुल। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 इज़ अ लाइन विच अ पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये ट्रू है। अगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 46 एंड 3x + 5y इज इक्वल टू 74 इज x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू -10, तो ये फॉल्स है। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन विच पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये फॉल्स है अपना। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x इज इक्वल टू y इज अ लाइन विच पैरेलल टू y एक्सिस, तो यह दोस्तों की है फॉल्स है। इन द इक्वेशन a1x प्लस जोड़ा है b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ताहा जी थोड़ी दी हुई ने दैन दे हैव यूनिक सोल्यूशन, तो यह दोस्तों अपना ट्रू है। तो दोस्तों इस तो बाद यह 24वां सीगा तो 48वां शुरू हो रहा है इतने, तो दोस्तों आप उपर चलते हैं। पहला 24वें तो पहला 25वां आंदा वा ना, 24वां तो बाद 25वां होंदा। आ देखो 25वां इतने दिता होया वा, ठीक है जी, मतलब थोड़ा जिहा इतने उन्होंने उपर करके दे दिता। देखो 25वां की है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन ax द स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इक्वल दैन d इज इक्वल टू 0, तो यह ट्रू आएगा अपना। ठीक है, आ 26वां देख लो दोस्तों, तुम अपना 27वां भी पढ़ लो, 28वां 29वां 30वां। ठीक है, हाँ तुम देख सकते हो सारे इन्होंने आंसर भी जोड़े है दोस्तों लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो तुम इसनूं रीड कर लो, स्क्रीन जी है मैं स्क्रोल कर रहा वा। ठीक है, 31वां 32वां 33वां 34वां, ठीक है जी, हाँ तुम देख सकते हो। ठीक है जी, इस तरह दोस्तों ये 35वां 36वां 37वां 38वां है तुहाडा दिता होया वा, तो तुहाडे आंसर भी दिते हुए हैं। ठीक है, जिवें कि आ देखो ट्रू 36वें का जोड़ा है अपना की है ट्रू है। ठीक है जी, 37वें का ट्रू है। 38वां जो प्रश्न है दोस्तों यदा भी फॉल्स है। ठीक है जी, 39 का प्रश्न ट्रू है। 40 का दोस्तों जो है फॉल्स है। 41 का जोड़ा है ट्रू है। ठीक है, इसी तरह ये सारे आंसर भी दिते हुए हैं। 42 का फॉल्स, 43 का ट्रू, 44 का दोस्तों ट्रू। ठीक है जी, 45 का जोड़ा है अपना
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 48 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 48 ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 1 + 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 + cot ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ = 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟਰੂ ਆ। ਸਾइन ਦਾ ਸਕੁਅਰ cos ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ = 1 ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ 50ਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 51 52 53 54 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 54ਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਅ ਸਿਲੰਡਰ ਇਜ਼ πr ਦਾ ਸਕੁਅਰ h ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ? 54, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 54 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 55 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 54 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 55 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੇਅਰ ਇਜ਼ 4/3 πr ਦਾ ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। 43 44 40 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 46ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, 47ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ 55 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟਰੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। 56 ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 62 ਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ ਇਜ਼ 0 ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸਤੋ 0 ਨਹੀਂ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 63 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 68 69 ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਹੈ। ਇਹ 70ਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ cos θ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਥੀਟਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ, ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ। sin θ = ਦੋਸਤੋ cos θ ਫॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਹੈ। cot a इज़ नॉट डिफाइंड फॉर a = 0 डिग्री ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 8 ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਈ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦਾ ਰੇਸ਼ਨਲ ਫਰੋਮ ਆਫ 0.15 ਇਜ਼ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ 3.b ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆਨਸਰ? HCF × LCM, ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ, ਦ ਸਮ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਕੋਟੀਐਂਟ of non-zeros rational and irrational number is irrational is the right answer ਹੋਏਗਾ। ਤੇ 6ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਫ x = p/q be an irrational number such that prime factorization of q is list of form of 2 n 5 m where n m are नॉन नेगेटिव इंटीगर्स दैन एक्स हैज़, ठीक है जी। की आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन, ठीक है जी। तो इसी तरह दोस्तों ये तो 7वां दिता होया वा, 8वां दिता होया वा, तो इन्हां दे आंसर भी जिवें क्या देखो लिखे हुए हैं। 8वें का आंसर ये है, ठीक है जी। 9वें का आंसर दोस्तों तुहाडा यही रहा, ठीक है। 10वें का आंसर दोस्तों जिवें तुसीं देख सकते हो। 11वें का आंसर भी जिहड़ा हैगा दिता होया है। सारे दे आंसर ही दोस्तों दिते हुए हैं, तुसीं इसनूं चंगी तरह देख लो। 12वां प्रश्न आंसर आह रहा, 13वां प्रश्न आंसर आह रहा, ठीक है जी। तो 14वां प्रश्न, 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, 17वां प्रश्न, ठीक है जी। तुसीं आह देख सकते हो इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह तुहाडा 17वें का, ठीक है। इसी तरह दोस्तों तुहाडे होर भी इत्थे दिते हुए हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न ने, ठीक है जी। हाँ द डिस्क्रिमिनेट इन द क्वाड्रिक इक्वेशन तो दोस्तों इहदा जिहड़ा हैगा वा इह इक्वेशन का की बनेगा? ये दोस्तों बराबर है इहदा जिहड़ा हैगा b² -4ac, ठीक है जी। इहदा फॉर्मूला मैनूं लग रहा वा। अगे दोस्तों वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो यदा दोस्तों आंसर जो है अपना 4 आ जाएगा। अगे AP2 डैश 26 इज़ तो दोस्तों 14 आ जाएगा इतने। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज़ तो दोस्तों 45 आ जाएगा। द कॉमन डिफरेंस D ऑफ AP तो दोस्तों -5 -3 -1 1 3 तो यदा आंसर दोस्तों जो है 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगे दोस्तों अपना प्रश्न की इतने, हाँ जी, क्योंकि दोस्तों ये ना दो डिफरेंस आ देखो 5 - 3 कितना 2 का डिफरेंस, 3 - के दोस्तों 2 का डिफरेंस, 1 - तो चलो कोई नहीं इतने अलग है। तो 1 - 3 इतने भी 2 का डिफरेंस हैगा वा, ठीक है जी। अगे दोस्तों ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है जी। ऑल सर्कल एंड स्क्वायर आर सिमिलर। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज डिवाइड इनटू द रेशियो 1:1, ठीक है जी। अगे दोस्तों द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स द एक्स कोऑर्डिनेट, और इहदा दोस्तों यही वाला भी आ सकता वा। अब इस जो है लिखा हुआ है दोस्तों अगे है अपना द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, ठीक है जी। अगे दोस्तों अपना 29वां प्रश्न देख लो, 30वां 31 तो इन्हों के आंसर भी आह देखो दोस्तों दिते हुए हैं, ठीक है जी। ये नहीं कि आंसर नहीं दिते हुए हैं, आंसर सारे दे दिते हुए हैं, ठीक है जी। हाँ तुम देख सकते हो। अगे दोस्तों 33वां प्रश्न देख लो, इधर 3 आ जाएगा। 34वें का दोस्तों 8 आ जाएगा। 35वें का दोस्तों कॉलिनियर आ जाएगा।
3 points are dash if the area of their triangle is 0 square units ਤਾਂ ਕੋਲੀਨੇਰੀਅਰ ਇਸਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿਦ ਪੁਆਇੰਟ A ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਲੀਨੇਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਯੂਨਿਟ ਦੈਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਲੀਨੇਰੀਅਰ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 38 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 30 ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸੈਕ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਆਏਗਾ। ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸੈਕ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 10 ਥੀਟਾ 1 ਬਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ 10 ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੋਸਤੋ ਡੈਸ਼ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾइन ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆंसर, ठीक है जी। तो यदा आंसर दोस्तों इस प्रकार तुम लिख देना वा। 39 का प्रश्न का आंसर देख सकते हो जिवें कि हाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, इतने दोस्तों यही वाला आ जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर थीटा इतने आ जाएगा, कॉस 10 स्क्वायर थीटा है दोस्तों इतने आंसर आ जाएगा। तो यदा दोस्तों की आएगा अपना 5 आंसर आ जाएगा यही वाले प्रश्न का, तो यदा दोस्तों आंसर जाएगा 9 आ जाएगा। तो दोस्तों अगे प्रश्न देखो अपना, तो अगला दोस्तों तुहाडा प्रश्न है कि देखो साइन 30 डिग्री किहदे बराबर होंदा है 1.2 दे, 10 45 डिग्री किहदे बराबर है। तो दोस्तों इसका आंसर जिहड़ा हैगा वा एक जिहड़ा हैगा इन्हां ने लिखिया होया वा, यानी कि 11, ठीक है जी। तो उस तो बाद दोस्तों की दिता होया इन्हां ने, यह 11 लिखा, पता नहीं हुण एक लिखा है जिवें कि 11 ही या फिर 1.1 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है। इसका आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसना वा, ठीक है जी। अगे दोस्तों अपना cos 30 डिग्री किहदे है, तो दोस्तों ये जिहड़ा हैगा बराबर है √3 बटे 2 दे। अगे दोस्तों द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसनूं कहते हैं। अगे दोस्तों अपना अ लाइन इंटरसैक्टिंग अ सर्कल 2 पॉइंट इज कॉल्ड, तो दोस्तों उसनूं सैकेंड कहते हैं। इसी तरह दोस्तों अगे तुहाडा ये 43 दिता है द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल इज डैश ऑफ, हाँ जी डैश साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो इसका लॉन्गेस्ट आंसर आएगा। तो 44वें का प्रश्न आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, तो दोस्तों इसका एक्स एक्सिस आएगा। अगे दोस्तों अपना कि 3 और मोर पॉइंट्स ऑन द लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर, हाँ जी कोलिनियर है, ठीक है जी। अगे अपना दोस्तों द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड, तो दोस्तों ओरिजन। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर द स्क्वायर, सर्कमस्टांस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज, तो दोस्तों 2 पाई आर। अगे है दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, तो यदा अपना आंसर यह वाला आ जाएगा थीटा ओवर 36 इंटू पाई आर द स्क्वायर। अगे है दोस्तों अपना इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड आर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज 2 यूनिट इज द राइट आंसर होएगा अपना। अगे दोस्तों अपना द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज, तो दोस्तों 0 आंसर इसका आएगा, ठीक है जी। तो अगे दोस्तों इन्होंने की लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉसिबल सर्टेन इवेंट इज 1, ठीक है जी। तो 1 हुंदा वा 0 जिहड़ा हैगा इंपॉसिबल दा हुंदा वा, ठीक है जी। तो पॉसिबल दा कितना हुंदा वा 1, ठीक है, यही चेते रखना वा। अगे दोस्तों इन्होंने होर कुछ महत्वपूर्ण तुहाडे फिलिंग द ब्लैंक्स दित्तियां होईयां ने, ठीक है जी। की दित्ती है देखो एरिया ऑफ अ सैगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज इक्वल टू, तो दोस्तों इसका आंसर यही आएगा एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर द स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो इसका 2 पाई आर इंटू जोड़ा है वा एच या पता नहीं बी इतने दिता होया वा, ठीक है जी। इसनों कन्फर्म तुम बुक तो कर लेना वा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब था दोस्तों 6a द स्क्वायर, क्लास मार्क ऑफ क्लास 150 160 इज, तो दोस्तों 10 है डिफरेंस ये। अगे डैश इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, तो दोस्तों इसका आंसर जोड़ा है वा मोड आ जाएगा। द लेटर ऑफ द वर्ड सोसाइटी, ठीक है जी, आर प्लेसड एट अ रैंडम इन अ रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवल इज, तो 3/7 इज द राइट आंसर होएगा। अगे दोस्तों द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन द हैपन इज, तो 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, तो 0 आएगा, ये तो हम पहला भी दस चुके हैं। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिक्स डाटा इज कॉल्ड, द मीडियन आएगा। इन द गिवन फिंगर हाँ जी इन द गिवन फिगर, ठीक है जी। अगे की लिखा है इन्होंने इन द गिवन फिगर द टॉय इज ऑब्टेन, हाँ जी ऑब्टेन्ड, ठीक है जी, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, ठीक है जी। तो इसका आंसर जोड़ा है हेमिस्फीयर एंड कोन आ जाएगा। अगे दोस्तों हम तुहाडा सैक्शन बी प्रश्न दे विचों, ठीक है जी। तो देखो की है यह दोस्तों सैक्शन बी है, ठीक है जी। तो यह दोस्तों तुहाडा प्रश्न 1 मार्क ईच, ये भी इत्थे दोस्तों 1 मार्क ईच दस्सिया, 1 मार्क ईच तो नहीं है दोस्तों। इत्थे एक सैक्शन बी दे विच तुहानूं जिहड़ा हैगा वा दूसरे प्रश्न आउणगे, ठीक है, जिहड़े हैगे किहड़े नंबर दे होणगे ये। तो दोस्तों इत्थे इन्होंने गलती नाल 1 मार्क्स लिखता होना, क्योंकि इत्थे 1 मार्क्स का नहीं है 2 मार्क्स के आने सैक्शन बी दे विच प्रश्न। तो चलो देखते हैं दोस्तों की है। तो देखो पहला प्रश्न की है दोस्तों, यूज इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड
फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 ठीक है जी। तो इसका आंसर तुम देख सकते हो दोस्तों इन्होंने किमें फाइंड किया है। HCF 135 आ गया एंड 225 जो है HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है जी। जिमें कि तुम यहाँ देख भी सकते हो दोस्तों इन्होंने किमें ये सॉल्व किया वा ठीक है जी। यानी कि आह तुहाडा दिता सीगा इहदा HCF दोस्तों 45 आ जाएगा सिंपल दे आह जिमें कि इन्होंने सॉल्व किया होया वा। जिमें कि 225 135 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 135 प्लस 90 कर देंगे तो दोस्तों 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 225 ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 135 ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ 90 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ 45 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 135 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 90 ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 90 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ 0 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ 90 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੰਸ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਜ਼ ਅ 0 ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 45 ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ तो दोस्तों दूसरा तो देखो प्रश्न की इतने अपना फाइंड हाँ जी की लिखा दोस्तों इतने अपना फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 15 12 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड ठीक है जी। तो तुम यहाँ देख सकते हो दोस्तों 15 का 12 का तो 27 का कढ़िया इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 12 21 तो देखो दोस्तों इन्होंने आह कढ़ लिया इसके बाद आह इन्होंने कॉमन भी ले लिया ये ठीक है जी। तो HCF 15 12 21 का 3 आ जाएगा। LCM दोस्तों जो है वा तो 420 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। उस तो बाद दोस्तों हाँ तीसरा प्रश्न जो दिता है गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9 फाइंड LCM 306 57 ठीक है 657 ठीक है जी। तो की आएगा इसका आंसर तो देखते हैं यानी कि दोस्तों देखो HCF दिता होया वा LCM फाइंड करने कहा गया वा ये ठीक है जी। तो दोस्तों ये देख सकते हो LCM जो है वा 34 इंटू 657 ठीक है बाई 338 इज़ द आंसर आ जाएगा LCM ठीक है जी। सॉल्व किमें किया वा आ देख लो दोस्तों इन्होंने फॉर्मूला लाया वा HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ठीक है वैल्यूज पुट कर दी ठीक है जी। आह तो HCF पता ही सीगा पहला LCM आह फाइंड करना सीगा 306 तो 657 ये दिता होया सीगा तो इसनूं सॉल्व करने तो बाद दोस्तों तुहाडा इन्ना आंसर आ गया। उस तो बाद दोस्तों तुहाडा ये दिता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ कंपोजिट नंबर ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी यहाँ दिता हुआ वा ठीक है जी विच इज़ अ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ अ फैक्टर ऑफ 5 सो इट्स अ कंपोजिट नंबर आह तुहाडा कंपोजिट नंबर तुहाडा ये कहा गया वा। तो हुण दोस्तों अपना अगला प्रश्न की ये प्रूव दैट 3 प्लस 2 5 प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर ठीक है। सो सोल्यूशन देखो दोस्तों कि लेट अस सपोज दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर वी कैन फाइंड A एंड B आर इंटीगर्स एंड B नॉट इक्वल 0 सच दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू A इंटू B ठीक है जी। A बटे B अगे 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू A बटे जो है B -3 अंडर रूट 5 A बटे B -3 बटे 2 ठीक है जी। तो अंडर रूट 5 A -3B इंटू जो है वा बटे दे 2B तो यह फस्ट तुहाडा बन गया ठीक है जी। तो दोस्तों सिंस A एंड B बोथ आर इंटीजर्स तो यह तुहाडा फार्मूला लग दिता तो यह रेशनल नंबर आ ठीक है जी। तो हैंस फ्रॉम 1 ठीक है जी अंडर रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर बट दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर हैंस 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर ये तुहाडा आंसर इस प्रकार तुसीं प्रूफ करना वा। तो होर भी जो है तुहाडे प्रश्न दिते हुए हैं जिमें क्या देखो फाइंड जीरोस ऑफ पॉलीनोमीअल आह वाला जो दिता है सोल्यूशन देखो दोस्तों आ इन्होंने पूरा करके भी दिता है तुसीं यहाँ देख सकते हो कि किवें इन्होंने ये किया वा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशेंट ठीक है। तो इन्हों का आंसर ये आ देखो वेरीफाई इत्थे कर दिता इन्होंने ठीक है जी। तो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो इन्होंने जो है इत्थे ये फाइंड किया होया वा ठीक है तुसीं यहाँ देख सकते हो। तो पूरा ही सोल्यूशन इन्होंने इत्थे प्रोवाइड किया होया वा। तो हुण दोस्तों अपना अगला प्रश्न की है इवेल्यूएट द फॉलोइंग ठीक है जी साइन 30 डिग्री प्लस टेन 40 डिग्री माइनस कोसैक 60 डिग्री बटे दे विच दोस्तों सैक का 30 डिग्री प्लस कॉस का 60 डिग्री ठीक है जी। तो प्लस कॉट 45 डिग्री तो यदा सोल्यूशन तुसीं यहाँ देख सकते हो दोस्तों ठीक है जी। यदा आंसर आह रहा बस इन्ना का ही यदा आंसर आ दोस्तों ठीक है जी। तो इस प्रकार दोस्तों तुसीं इसका आंसर लिख देना वा। अगे दोस्तों तुहाडा प्रश्न की है इत्थे हाँ जी फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 -3 एंड Q जोड़ा है दोस्तों 10 y इज़ 10 यूनिट्स। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों आ देख लो बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला ला दिता वैल्यूज पुट कर दी तो यह आंसर दोस्तों तुसीं यहाँ देख सकते हो सिक्योरिंग बोथ साइड्स ठीक है जी। तो इसनूं सॉल्व करते गए अगे दोस्तों तुसीं यहाँ देख सकते हो वाई जोड़ा है दोस्तों देख सकते हो कितना आ गया वा 3 ते -9 इज़ द राइट आंसर इत्थे इन्होंने कर दिता पूरा का पूरा सोल्यूशन इत्थे दिता होया सी। तो अगे दोस्तों इवैल्यूएट आह तुहाडा किया गया वा ठीक है जी। तो यदा आंसर भी तुहाडा ये सामने दिता होया वा आह प्रश्न का ठीक है तुसीं इसनूं देख लो प्रूव दैट दोस्तों आ बई जिहड़ा तुहाडा इक्वेशन दी हुई है यदा सोल्यूशन भी इत्थे LHS राही ही तुहाडा दिता होया वा तुसीं यहाँ देख सकते हो ठीक है जी।
ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों तुहाडा ये प्रश्न अपना, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रिस्पैक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज़ अ सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल। तो इहदा सोल्यूशन आ देखो दिता होया वा, ठीक है जी। की है, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 19 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 यानी कि दोस्तों 9 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ अ थर्ड सर्कल R3 ਤੇ R3 सेंटीमीटर, ATQ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ऑफ आई सर्कल प्लस पैरीमीटर ऑफ सैकेंड आई नहीं इतने फर्स्ट सर्कल तो सैकेंड सर्कल इज इक्वल टू दोस्तों पैरीमीटर ऑफ अ थर्ड सर्कल, ठीक है जी। तो फॉर्मूला ला दिता इन्होंने, वैल्यू से जी है पुट वगैरह करके दोस्तों जो है आंसर तुम यहाँ देख सकते हो कितना आ गया, इतने 28 सेंटीमीटर जो है R3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह दोस्तों 12वां प्रश्न दिता है, फाइंड द एरिया ऑफ सैक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये देखो रेडियस ऑफ सर्कल की है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर दोस्तों 60 डिग्री है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर द स्केयर है, ठीक है जी। तो इस तो बाद दोस्तों इन्होंने हाँ देख सकते हो आंसर किमें कढ़िया होया है 132.132/7 सेंटीमीटर का स्केयर इन्होंने आंसर कढ़िया होया है, ठीक है। तो तुसीं इसलिए कम करो, आ जोड़े प्रश्न ने पहला खुद सॉल्व करने की कोशिश करो हथ नाल, ठीक है, कापी ते, ठीक है। अगर तुहाडे तो सॉल्व नहीं हो रहा फिर दोस्तों तुसीं आंसर ये देखियो, आ जो प्रश्न दिता है तुहाडा सारे ही प्रश्न, यही प्रश्न नहीं सारे ही, ठीक है। आज जिवें क्या तुहाडा प्रश्न दिता है, इफ PE इक्वल टू दोस्तों 0.05 वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, ठीक है जी। तो इसका आंसर दोस्तों तुसीं देख सकते हो इन्होंने इस तरह प्रकार सॉल्व किया है। अगे दोस्तों 14वें प्रश्न का आंसर तुसीं देख सकते हो, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक of 52 cards, calculate the probability will be an ace not be an ace, ठीक है जी। तो इसका आंसर तुहाडा ये दिता होया वा कितना आ गया 1.13, ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों तुहाडा ये दूसरे का दिता होया वा भी नॉट एन एज, तो इसका आंसर जो है वा 12.13 आ गया, ठीक है। तुसीं यहाँ देख सकते हो कि किमें कढ़िया वा। अगे दोस्तों तुहाडा प्रश्न 14वां वा 15वां प्रश्न, अ लॉट ऑफ B बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, ठीक है जी। तो इसका आंसर जिवें तुसीं देख सकते हो इन्होंने इत्थे कढ़िया है 1.5 इज द राइट आंसर आया होया वा। अगे दोस्तों अपना आ डाई इज अ थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है जी। द प्राइम नंबर एन ऑड नंबर अ नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो इसका आंसर तुसीं देख सकते हो, पहले का आंसर जो है 1.2 आ, दूसरे का आंसर दोस्तों जो है वा कितना वा 1.2, यदा भी 1.2 ही आंसर लाया हुआ वा। तो दोस्तों अपना जोड़ा है वा तीसरा प्रश्न आ वह आंसर भी 1.2 आ, 3.6 कट के, ठीक है। तो ये आंसर जोड़े है 3 प्रश्न से, 3 प्रश्नों के आंसर इतने इन्होंने थले दस दिते हैं, ठीक है जी। उस तो बाद दोस्तों तुहाडा प्रश्न है, इन ट्रायंगल ABCDE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE प्रूव दैट, ठीक है जी। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन भी तुसीं देख सकते हो दिता हुआ है इत्थे, आह तुहाडा आंसर आ, ठीक है जी। उस तो बाद दोस्तों इत्थे तुहाडा थोड़ा जिहा होर दिता होया वा, इन ट्रायंगल ABEDFE पैरेलल AE, तो ठीक है जी। एक के बाद दोस्तों तुसीं भी देख सकते हो हैंस प्रूव्ड इत्थे हो गया, ठीक है। इस तो बाद दोस्तों तुहाडा ये 18वां प्रश्न है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन भी आ देखो दिता होया वा, तुसीं इसनूं देख सकते हो। उस तो बाद दोस्तों 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न, डिवाइड 2x द स्क्वायर प्लस 7x माइनस बाय x प्लस 4। तो इसका सोल्यूशन भी दोस्तों आ देखो दे रखा है, इसका आंसर इत्थे आ जाएगा, ठीक है जी। अगे दोस्तों तुहाडे सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने 2 मार्क्स के, ठीक है जी। जिवें कि फाइंड HCF ऑफ 225 एंड 800 हाँ जी 867 बाय यूजिंग इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम मैथड, ठीक है। तुसीं चाहुंदे हो कि इन्हां दे सोल्यूशन असीं कोशिश करांगे लैके आ जाइए, ठीक है जी। जिवें कि तुसीं सब तो पहला ये देख लो, खुद ही तुसीं ये सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है जी। तो इसलिए दोस्तों ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी ਨੂੰ ਇਹ प्रश्न आउंदे आ, ठीक है, तुसीं ਇਹ खुद अपने कापी पैन कड्ढो तो इसनूं सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है जी, कि इन्हां दे आंसर भी जिहड़े हैगे तुहाडे सामने लिया के तुहाडे सामने पेश किए जाण, ठीक है। जल्दी तो जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि आह वाले जिहड़े प्रश्न जिहड़े हैगे अनसॉल्व वाले हैगे आ 18वां 19वां 20वां, ठीक है, जिहड़े अनसॉल्व हैगे इन्हां नूं कोशिश करांगे जल्दी तो जल्दी लैके आउण दी, ठीक है जी। उस तो बाद दोस्तों तुहाडा 21 प्रश्न दिता होया वा, 22 दिता होया वा, ठीक है। तुसीं इसनूं खुद ही सॉल्व करना वा, 23 ये 24 इत्थे दिता होया वा, ठीक है जी। तो दोस्तों असीं कोशिश जरूर करांगे जिहड़े अनसॉल्व आ, ठीक है, किसी तो सॉल्व करवा लीए, ठीक है जी। तो तुसीं भी कोशिश करो खुद कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक है जी। पहला तुसीं खुद इसनूं कोशिश करो कि किवें इसनूं सॉल्व करना वा, कापी पैन कड्ढो, आ जिहड़े प्रश्न जिहड़े चल रहे हैं इन्हां नूं सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्तों इन्हां ही प्रश्नों के विच्चों तुहाडा जिहड़ा हैगा क्वेश्चन पेपर बन के आऊगा। शांति गैस पेपर दे विच दोस्तों उही प्रश्न हुंदे आ जिहड़े कि बोर्ड दे विच आए हुंदे आ, ठीक है जी। तो शांति गैस पेपर वाले जिहड़े गैस करते हैं कि हाँ बई ये जिहड़े प्रश्न ने यही बार बार रिपीट होंगे, बोर्ड के पेपर के दोस्तों यही सिस्टम आ, कोई नवा क्वेश्चन नहीं आता हुंदा, ठीक है जी। सारे जने जिहड़े हैगे आ उही क्वेश्चन रिपीट करके पाई जाते होंगे आ, उस टाइप का प्रश्न आता वा,
ठीक है। तो दोस्तों तुसीं आह क्वेश्चनां नूं देखी चलो, वैरी वैरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न उत्तर ने, ये अनसॉल्व आ, ठीक है जी। मतलब इन्हां दे सोल्यूशन शांति गैस पेपर ने नहीं दिते आ, सिर्फ दोस्तों मतलब इत्थे दस्सिया होया वा। जिवें कि हुण दोस्तों कोई क्वेश्चन जिवें कि इत्थे ਇਹਦਾ आंसर एक दा दिता होया वा, चलो देखते हैं, बाकी अनसॉल्व आ। जिवें कि आह वाला प्रश्न तुहाडा दिता होया वा 68 प्रश्न शायद मैनूं लगदा ये, ठीक है जी। तो देखो इन फिगर इफ ए डी जिहड़ा हैगा वा बी सी, तो प्रूव दैट ए बी दा स्केयर सी डी दा स्केयर प्लस बी डी दा स्केयर प्लस ए सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। वैरी वैरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा होया वा, ठीक है। तुसीं आह देख सकते हो दोस्तों, इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है जी, ए डी सी। तो ए सी का स्क्वेयर ए डी का स्क्वेयर प्लस सी डी का स्क्वेयर, यह फस्ट बन गई बाय पी जी टी। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी का स्क्वेयर प्लस ए बी का स्क्वेयर इजकल टू दोस्तों ए डी का स्क्वेयर प्लस बी डी का स्क्वेयर, दूसरे सबसट्रैक्टिंग दोस्तों हुण की मैं देखो सबसट्रैक्ट करना वा 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ। देखो ए बी का स्क्वेयर माइनस ए सी का स्क्वेयर इजकल टू दोस्तों बी डी का स्क्वेयर माइनस सी डी का स्क्वेयर, ए बी का स्क्वेयर प्लस सी डी का स्क्वेयर इजकल टू दोस्तों बी डी का स्क्वेयर प्लस ए सी का स्क्वेयर। था दोस्तों ये तुहाडा आंसर हो गया। उस तो बाद दोस्तों तुहाडे आह जिवें कि प्रश्न दिते हुए हैं, जिवें कि आ बॉक्स जिहड़ा हैगा वा 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट एट रैंडम, वट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल, ठीक है जी। जिवें कि तुहाडे प्रश्न दिते हुए हैं, ये भी अनसॉल्व हैगे आ, तुसीं इसनूं भी खुद ही ट्राई करके देखना वा, ठीक है जी। बाकी अगर तुसीं चाहुंदे हो कि असीं इन्हां दे सोल्यूशन लैके आईए, तो असीं भी अपनी तरफ तो क्वेश्चन जिहड़े जरूर कोशिश करांगे इन्हां दे आंसर लैके आउण दी। बाकी दोस्तों हुण तुहाडा ये सैक्शन सी स्टार्ट हो रहा वा, ठीक है जी, जो कि तुहाडे 20 मार्क्स दे आएगे, 4 मार्क्स के प्रश्न ने, ईच क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स होएगा, ठीक है जी। ये भी अनसॉल्व है, जिवें कि तुहाडा ये पहला प्रश्न है दोस्तों, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन विद द मैथड बाय द मैथड ऑफ कंप्लीटिंग द सिक्योर, ठीक है जी। जिवें कि तुहाडा ये प्रश्न दिता होया वा, ठीक है। तो तुसीं इसनूं जिहड़ा हैगा सॉल्व करना वा खुद ही, तो ये अनसॉल्व आ। अगर तुसीं चाहुंदे हो कि असीं सॉल्व कराइए, जिवें कि आह वाला, जिवें कि दोस्तों तुसीं आह देख सकते हो, आही तुहाडा प्रश्न सीगा 4x का स्क्वायर 4√3x प्लस 3 इजकल टू 0, ठीक है जी। देख लो आही प्रश्न सीगा ना। तो इसी तरह दोस्तों असीं कोशिश करांगे जिहड़े तुहाडे प्रश्न ने उन्हां दे आंसर लैके आइए। जिवें कि आ देख लो आही प्रश्न है ना 4x का स्क्वायर, ठीक है जी, 4√3, तो बिल्कुल दोस्तों आही जिहड़ा हैगा अपना प्रश्न आ, ठीक है जी, बिल्कुल सेम यही प्रश्न आ। तो आ देख लो इसका सोल्यूशन इस प्रकार हैगा वा, जिवें कि ए इजकल टू 4, बी इजकल टू 4√3, सी इजकल टू जिहड़ा हैगा वा अपना 3, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखो दिता है ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ए एक्स द स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है जी। तो बाय यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला, आह फार्मूला इन्होंने लाया, वैल्यू पुट कर दी, आंसर जिहड़ा हैगा वा देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने कर दिता -3 अंडर रूट बटे दे विच 2, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों इन्होंने आंसर सॉल्व कर लिया वा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह फिर असीं कोशिश करांगे आह वाले प्रश्न जिहड़े बाकी तुहाडे प्रश्न रह गए आ, इन्हां नूं लभ के तुहाडे सामने जल्दी तो जल्दी पेश करिए, ताकि तुहाडी रिविजन हो सके, ठीक है जी। तीसरा प्रश्न देख लो दोस्तों, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीगर्स सम ऑफ हुज सिक्योर इज 290, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिवें कि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, तो असीं कोशिश करांगे जिहड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ने इन्हां दे सोल्यूशन जल्दी तो जल्दी लैके आइए, ताकि दोस्तों जदों प्रश्न क्वेश्चन पेपर दे विच आह प्रश्न आ जावे, तो तुसीं 2 मिनटां दे विच उहनां नूं सॉल्व कर लो। क्योंकि दोस्तों अगर तुसीं पहलां तो ही प्रश्न सॉल्व करके रखे होणगे या देखे होणगे, तो तुसीं चुटकी दे विच जदों क्वेश्चन देखोगे तो फटाफट उसनूं लिख दोगे। जिवें कि आह देखो दिता होया ना वा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आ देखो 19वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, जिवें कि ठीक है जी, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे, ठीक है जी। आ देखो आ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आ, ठीक है जी। 20वां प्रश्न इस तरह दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट ना प्रश्न जिहड़े हैगे असीं सॉल्व करवा दांगे, अगर तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा कमेंट करोगे, ठीक है जी, कि हाँ जी सर आ देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन शिप इज़, ठीक है जी। आह वाला प्रश्न तुसीं अगर चाहोगे तो दोस्तों तुसीं कमेंट कर करके दसी चलो कि सर इन्हां दे सोल्यूशन लियाओ जिहड़े कि जिहदे विच इंपॉर्टेंट लिखे होए आ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ते वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो हुण दोस्तों तुसीं ये कमेंट करके दसना वा, ठीक है। तो फिर मैं जल्दी तो जल्दी कोशिश करूँगा कि इन्हां दे प्रश्नां दे सोल्यूशन भी ले आवां, क्योंकि दोस्तों इन्हां दे विचों ही पेपर आउणा वा, जिवें कि आह देख सकदे हो तुसीं, ठीक है जी। बाकी तुसीं कोशिश करो कि खुद ही इसनूं सॉल्व कर लवो, ठीक है, गाइड दे विच बुक दे विच लभ के कितों भी, ठीक है, या टीचर तो या किसी अपने फ्रेंड वगैरह की हेल्प लैके आह जिहड़े प्रश्न मैं तुहानूं दिखा रहा जिहदे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट ते वेरी इंपॉर्टेंट लिखिआ आ तां छड्डना ही नहींगा बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल छड्डनी नहीं, जिहदे विच आह मोस्ट इंपॉर्टेंट ते वेरी इंपॉर्टेंट लिखिआ होया वा, ठीक है दोस्तों। तो आ देख लो दोस्तों होर जिहड़ा है मोस्ट इंपॉर्टेंट आ वाला प्रश्न, ठीक है जी। तो तुहाडा 40वां प्रश्न आ अनसॉल्व ने, ठीक है जी। गल यही आ शांति गैस पेपर वाले ने सॉल्व नहीं किए, तुसीं चाहुंदे हो कि इन्हां नूं सॉल्व चाहिए वा, तो मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करके तुहानूं लियाउण दी पेश करूँगा, ठीक है। बाकी तुसीं अपनी गाइड या बुक ते भी लभ सकते हो इसनूं। अगे दोस्तों इन्होंने होर जिहड़े है कुछ प्रश्न दिते हुए हैं, जिवें कि एक्सप्रैस नंबर गिवन बिलो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, ठीक है जी। आह जिहड़ा दिता होया वा तुहाडा ये सोल्यूशन इन्होंने आ देख लो दिते हुए हैं किवें ये फाइंड कीता वा, ठीक है जी। तो अगला प्रश्न दोस्तों इन्हें कि फॉर वट वैल्यू ऑफ पी ऑफ द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन गिवन बिलो यूनिक सोल्यूशन, तो इन्होंने आ देखो ਇਹਦਾ सोल्यूशन भी दिता होया वा, ठीक है जी। तो आह रहा आ ਇਹਦਾ ही सोल्यूशन हैगा वा, ठीक है।
इस तरह दोस्तों इन्होंने सैक्शन डी दस्या वा, ठीक है जी। तो ये भी दोस्तों जो है वा ये तुहाडे जिहड़े हैगे सैक्शन डी 6 मार्क्स दे आ, 2 × 6 यानी कि 12 मार्क्स दे तुहानूं ये आने आ। ते बाकी तुहानूं चैप्टर तो पता ही है कि किहड़े-किहड़े चैप्टर दे विचों आउणा वा, जिवें कि तुहानूं पता ही पहला ही दस्सिया सीगा असीं, ठीक है जी। आ देखो पहला ही दस्सिया सी ना, एक तो 6वें चैप्टर दे विचों आएगा, एक 6 मार्क्स वाला, ठीक है जी। एक तुहानूं जिहड़ा हैगा वा ये 13वें चैप्टर दे विचों आएगा स्टैट्स दे विचों, ठीक है जी। आह जिहड़ा दित्ता होया वा चैप्टर 14, सॉरी इत्थे चैप्टर 14 वा, ठीक है जी। तो यह जिहड़ा हैगा ट्रायंगल वाला जिहड़ा हैगा तुहाडा चैप्टर इत्थे 6वां ही आ, ते सर्कल चैप्टर दे विचों भी आएगा, ठीक है जी। आ देखो इहदे विच ध्यान रखियो दोस्तों, एक तां ट्रायंगल चैप्टर दे विचों, एक सर्कल चैप्टर दे विचों, एक स्टैट दे चैप्टर दे विचों। आह 3 चैप्टर हैगे जिहड़े कि दोस्तों आउणगे, ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लई। जिवें कि आ देखो इन्हां ने दस्सिया ना 6 मार्क्स, ठीक है जी। तो इत्थे तुहाडा ये आएगा। तो दोस्तों चलो थल्ले देखते हैं, ये भी दोस्तों जिहड़े हैगे अनसॉल्व आ, ठीक है। बाकी असीं कोशिश करांगे, जिवें कि आ देखो सैक्शन डी दे जिहड़े प्रश्न ने 6 मार्क्स वाले, हाँ देख लो, जिवें कि प्रूव दैट इफ अ लाइन इज अ ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सम रेशियो। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है जी। आ देखो दोस्तों जिहड़ा है तुहाडा प्रश्न है, ठीक है जी, ਇਹਦਾ सोल्यूशन तुहानूं दिखा देना। यह थ्योरम आ तुहाडी, ठीक है जी। तो देख लो दोस्तों आह जिहड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है सेम आही स्टेटमेंट है तुहाडी, जिवें कि ड्रॉ पैरेलल टू वन इंटरसेक्ट द अदर साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड्स टू साइडेड इन द सेम रेशियो। इनू दोस्तों जिहड़ा हैगा वा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम इनू कहते हैं, BPT, ठीक है जी। जिवें कि तुसीं आ देख सकते हो डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो आही है ना अपना, डिवाइडेड इन द डिस्टिंक्ट इन द डिवाइड्स इन द टू साइड इन द सेम रेशियो, ठीक है, बिल्कुल वही है दोस्तों। अगर तुहानूं ये आ जाए तो तुसीं इस तरह इसदे नाल एक्सप्लेन करके आउणा वा, आंसर ये प्रकार लिख के आउणा वा। तुसीं आ देख लो डायग्राम बना देनी है, तो यह तुसीं इस तरह करके आउणा वा, ठीक है जी। अगे देख लो दोस्तों अगे होर भी सोल्यूशन दिता होया वा इहदा, ठीक है, इस प्रकार तुसीं इन्हां दे आंसर लिख के आउणा वा, ठीक है, जिवें तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो, ठीक है जी। तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। तुसीं आ चंगी तरह देख लिया होना दोस्तों किवें इन्हां ने सॉल्व किया होया वा। इस तरह दोस्तों असीं होर भी सोल्यूशन लिआंदे रहांगे, इसलिए चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ। अगे दोस्तों तुहाडा यह दूसरा प्रश्न जिहड़ा दिता होया वा, ठीक है जी, आह तुहाडी जिहड़ी हैगी है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल यानी कि सिमिलर यह जिहड़ी हैगी तुहाडी थ्योरम आ, जिवें कि आ देख सकदे हो सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, इसनूं सिमिलर थ्योरम भी कहंदे आ, ठीक है। तो दोस्तों यह अगर तुहानूं आ जाए तो तुसीं इस प्रकार इसका आंसर लिख के आउणा वा, जिवें कि आ तां पहला हो गया, ठीक है, सोल्यूशन आ देखो दिता ना सोल्यूशन, ठीक है जी। फिर दोस्तों तुसीं इसके कंस्ट्रक्शन के प्रूफ आह दे के आने आ, लिख के आना वा। तो दोस्तों पक्का ही आना वा, मतलब इन्हां दे विचों कुछ ना कुछ तो पक्का एक दो आणगे ही आणगे, ठीक है जी। ये पक्की गल है मेरे वालों, चाहे लिखा के ले लो मेरे तो, ठीक है जी। हर बारी आउंदे आ तो हैंस प्रूफ इत्थे दोस्तों हो गया, ठीक है जी। तो तुहाडा ये थ्योरम बस इन्नी की ही सी, ठीक है जी। इत्थे तुसीं ये देख सकते हो दोस्तों किवें किवें ये सॉल्व किया होया वा, ठीक है जी। तो दोस्तों उस तो बाद अपना यह दूसरा जिहड़ा पूछा गया वा तीसरा प्रश्न, तो इन ट्रायंगल इफ अ सिक्योर वन साइड, ठीक है जी, तो दैन प्रूव दैट आर एंगल ओपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, ठीक है जी। तो यह भी दोस्तों असीं लभ लिया वा, ठीक है जी, इन ट्रायंगल वाला। आ देखो दोस्तों यह वाला प्रश्न इत्थे है तुहाडा, आ देखो इन ट्रायंगल, ठीक है जी, ओपोजिट द फर्स्ट साइड। तो यह दोस्तों जी थ्योरम का नाम आ, यदा नाम आ दोस्तों कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी, कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस ओपोजिट द फर्स्ट साइड, ठीक है जी। तो आही वाली तुहाडी जिहड़ी हैगी तीसरा प्रश्न का यह भी थ्योरम आ, ठीक है जी, यह कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है जी। तो यह तीसरी आ तुहाडी, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी तुसीं कर लो। आ देख लो ये लिखिया भी होया सीगा नाले, आ देख लो इत्थे लिखिया ना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की हुंदा वा जिहड़ा आऊगा ही आऊगा, ठीक है जी। तो यह भी तुसीं चंगी तरह कर लो, इहदा सोल्यूशन देख लो इत्थों शुरू है, ठीक है। तो तुसीं इसनूं देख सकते हो किवें इन्हां ने यह आंसर फाइंड किया है, डायग्राम भी बनाई हुई है, तो तुसीं इसका आंसर देख सकते हो। ज़्यादा कोई वड्डी भी नहीं हैगी, छोटी जी हैगी है बिल्कुल, ठीक है जी। आह इन्ना का ही आंसर इसका हैगा वा, ठीक है जी। तो तुसीं देख सकते हो। तो हुण दोस्तों अपना अगला प्रश्न ये पूछा है चौथा प्रश्न, तो यह तुहाडी दोस्तों हाइपोटेन्यूज यानी कि देख सकते हो दोस्तों यह किहड़ा वा, यह दोस्तों पाइथागोरस है। सिंपल जी मैं तुहानूं दस्सां दा स्टेटमेंट तुसीं मिला भी लिओ चाहे, आ देखो दोस्तों हाइपोटेन्यूज आ लिखिया ना, तो यह बिल्कुल दोस्तों तुहाडी पाइथागोरस थ्योरम इसनूं कहंदे आ, ठीक है जी। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा चौथा प्रूव दैट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, देखो लिखा है ना प्रूव दैट राइट ट्रायंगल एंगल, ठीक है जी। आही तुहाडा दिता होया वा, आही स्टेटमेंट आ मिला लो चाहे तुसीं स्क्रीन नूं रोक के देख सकते हो दोस्तों। गिवन कंस्ट्रक्शन प्रूफ आ दिता होया वा, इन्ना का सॉल्व पहला कर लेना वा इसनूं, ठीक है जी। उस तो बाद दोस्तों तुसीं सॉल्व जिवें कि हाँ बस इन्ना का ही हैगा वा, ठीक है जी। इहदा आंसर दोस्तों इस प्रकार तुसीं इन्ना का ही लिख लेना वा, यह तुहानूं असीं दिखा दिता वा। तो हुण दोस्तों अपना अगला जे गल करिए तो पंजवां प्रश्न जिहड़ा हैगा वा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी आ सकते हैं। बाकी दोस्तों ਜਿਹੜੀ चार आह ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, आह चार चीज़ां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ठीक है जी। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ कर लिओ, ਇਹਨਾਂ चार ਵਿੱਚੋਂ एक या फिर दो दोनों ही पक्की आ जाएंगे, ठीक है जी। तो चंगी तरह इसनूं कर लिओ। तो हुण दोस्तों पंजवां प्रश्न भी देख सकते हो, छेवां भी देख सकते हो, सत्तवां भी देख सकते हो दोस्तों, ठीक है जी। अठवां भी देख सकते हो तुसीं। बाकी ये अनसॉल्व आ, अगर तुसीं चाहुंदे हो कि असीं इन्हां दे सोल्यूशन भी लैके आइए तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दस देना। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आह जिहड़े प्रश्न ने बाकी, ठीक है, जिहड़े ये अनसॉल्व वाले हैगे आ, ठीक है, इन्हां दे सोल्यूशन लैके आ जाइए, ठीक है। जिवें कि आह देखो 11वां वा 12वां प्रश्न आ,
ठीक है। स्टैट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਇਹ 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੌਰੀ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੇਜ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 16ਵਾਂ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੋਲਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ।